سر سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں پاکستان کی بات کریں تو بتائیے گا تمام تر چیلنجز کے باوجود قیام پاکستان سے لے کر آج کے دن تک سب سے زیادہ غیر معمولی ایونٹس آپ کی نظر میں کیا رہے ہیں؟ اگر کوئی ایک آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح تو ہم نہیں حاصل کر سکے وہ مقام ابھی تک جو میرا خیال ہے قائد اعظم یا ہمارے آباء و اجداد نے سوچا تھا، ایک خوشحال ملک جہاں انصاف ہو، اپرچونٹیز ہوں، ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ کم ہو، تقریباً دو کروڑ بچے اسکول سے باہر نہ ہوں، یہ تو نہیں سوچا ہوگا۔ بہت سارے چیلنجز ہمیں رہے ہیں، لیکن ایک ملک کی جب بھی سوورینٹی کی، ہمارے دفاع کی جب بھی مسلح افواج نے جب بھی ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو پرانی جنگوں نہیں، خاص طور پر جو پچھلے سال کا جو مارکا تھا مئی 2025 کا، اور میں کیونکہ پاک فضائیہ میں تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ خدمات انجام دی، تو میرے لیے یہ مارکا کہہ لیں یا اپرچونٹی کہہ لیں یا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی، جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات ہوا تھا، جس میں ہندوستان کے ہم نے 8 جہاز تباہ کیے تھے، میرے لیے ایز پاکستانی بھی اور پاک فضائیہ کے ایک فارمر ممبر کے طور پر بھی بہت خوشی، انتہائی پراؤڈ مومنٹ تھا۔ میرے لیے نہیں صرف پوری قوم کے لیے، بلکہ میں پچھلے سال اس مارکہ حق کے فوراً بعد غیر ممالک میں گیا تھا وزٹ کرنے کے، لیکچر کو انٹرویو دینے تھے کینیڈا، امریکہ میں، اور وہاں بھی پاکستانی شاید ہم سے بھی زیادہ وہ خوش تھے اور پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ایک نئی آئیڈینٹی تھی، ایک نئی شناخت تھی ہمیں تمام جو پاکستان کے لوگ کہیں باہر رہنے والے اور باہر کے جو پاکستانی ہیں، تب کو ایک پراؤڈ مومنٹ ہمیں نصیب ہوا الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا کہ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان نے جس طرح ثالث کا تاریخی اور غیر معمولی کردار ادا کیا، اس نے خطے کے جغرافیائی اور سفارتی منظرنامے کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے؟ ہم نے جو خطے میں جو ہماری معرفت ہوئی وہ تو بالکل پچھلے سال ہی بدل گئی تھی، مئی 2025 میں، جب ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ جو ہندوستان پہ حملہ کیا، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک سبق سکھائیں، جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم دہشت گردی میں ملوث ہیں، وہ ایلیجڈلی دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے اس بہانے آئے تھے۔ ہم نے جو سبق سکھایا، جو ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی، ہم تو اسی وقت الحمدللہ ریلیونٹ ہو گئے تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ قوم ہے 25 کروڑ لوگوں کی، جس کی مسلح افواج ہیں، جس کی اتنی اسٹرانگ پاک فضائیہ ہے، ویل ٹیسٹڈ بیٹل ہارڈنڈ ایک فوج ہے، تو ہم نے وہ سبق سکھایا۔ پھر آنے والے 11-12 مہینوں میں، جون جولائی 2026 تک ہم نے دیکھا کہ ہم نے صرف پچھلے سال ہم ایک ریجنل سٹیبلائزنگ ملک کے طور پر ابھرے تھے، اور اس 1.25 سال کے اندر الحمدللہ ہم ایک گلوبل پیس میکر یا ایک کنٹریبیوٹر کے طور پر ابھرے ہیں۔ دنیا ہمارا احترام کرتی ہے، اور ظاہر ہے جب ہمارا احترام کرتی ہے تو دوسری طرف ہندوستان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی جو تقریباً 1.25 سال پہلے ہندوستان کی تھی۔ انہوں نے مس ایڈوینچر جو کیا تھا، اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ہندوستان کا جو ایک انفارچونیٹ ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو رول رہا تھا، ان کی فورن پالیسی بڑی ہی افسوسناک ڈائریکشن میں چلی گئی جب انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑ کے اسرائیل کا ساتھ دینا شروع کیا، تو دنیا نے تب ریئلائز کیا۔ تو جو اب ہندوستان کی ریلیونس ہے وہ میں نہیں کر رہا، ہندوستان کے تجزیہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان نے بہت مقام اپنا حاصل کیا ہے، اور وہی زیادہ۔ خالد صاحب، بھارت کی طرف سے مسلط کردہ کسی بھی ایڈونچر کا پاکستان نے ہمیشہ ہی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ مارکہ حق، آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کی جگ ہسائی کی، تو پوری دنیا گواہ ہے، کیا بھارت اب پاکستان کو چیلنج کرنے کے قابل رہا ہے؟ ہوں گی یا جیٹ ورسز جیٹ ہوں گی، یا نمبر کا مقابلہ ہوگا یا پیسے کا مقابلہ ہوگا، آنے والی جنگیں وہ ملک یا وہ سائڈ جیتے گی جو اپنے لیے جنگ اکنامیکل کرے گی، ایفیشنٹ کرے گی، انٹیگریٹ کرے گی، اور دشمن کے لیے جنگ مہنگی کر دے گی۔ آپ نے دیکھا مئی 2025 میں جو واقعات ہوئے، ہم ہندوستان کی نسبت فائنینشلی بھی کمزور ہیں، ملٹریلی بھی ہماری اس طرح سٹرینتھ نہیں ہے اگر نمبر وائز صرف مقابلہ کریں، لیکن الحمدللہ کم بیک کیا ہم نے، ایک اوفینس لانچ کیا ہمارے دشمن نے ہمارے اوپر، لیکن ہم نے جو ان کو سرپرائز دیا وہ شاید ان کی کتابوں میں بھی پڑھایا جانا چاہیے، انشاءاللہ ہم تو وتھ پرائڈ پڑھائیں گے ہی۔ تو آنے والی جنگیں ٹیکنالوجی انٹینس ہوں گی، الیکٹرانکس کی ہوں گی، سائبر کمانڈ کی ہوں گی، سیٹلائٹس کی ہوں گی۔ جو دشمن کے موو کو پہلے دیکھ پائے گا، جانچ پائے گا، اس کی ایویلویٹ کر کے رسپانس دے پائے گا، اور رسپانس پاکٹس میں نہیں، رسپانس دے گا ایز اے کمپریہنسو آرکیسٹریٹ کر کے، لائک ون کل پکچر، ملٹی ڈومین آپریشن، ایک ڈومین میں کام کریں گے۔
चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे फाइटर जहाज हो, चाहे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हो, चाहे ज़मीन पर बैठा हुआ रेडार कंट्रोलर हो, या ज़मीन पर बैठा हुआ साइबर वॉरियर कनेक्टेड हो सैटेलाइट से और इनपुट ले रहा हो। ये तमाम के तमाम अगर एक जान होकर नहीं लड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नहीं करेगी, उसको अपने इंटीग्रेट भी करना होता है। हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छे फाइटर जहाज थे, लेकिन मैं उनमें कमी ये देख रहा हूँ कि उन्होंने पीस टाइम में ट्रेनिंग उस तरह नहीं की थी, इंटीग्रेट उस तरह नहीं किया था, वन किल पिक्चर नहीं थी। और जिस तरह ऑर्केस्ट्रेट करते हैं हर एक मिलिट्री माइट या मशीन ने एक फोर्स की तरह एट द एंड डिलीवर करना होता है, वहाँ पे वो कमी थी। और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया का, क्योंकि मैं बेहतर समझ पाया हूँ ओवर द ईयर्स, मैं डॉक्यूमेंट्री 6-7 साल से बना रहा हूँ और मेरे लिए ऑनर भी है कि पाक फ़िज़ाइया ने मुझे कई दफ़ा एक्सेस भी दिया ऐसे एयर बेसिस का, पायलट्स के इंटरव्यू करने का, मैं अपने यूट्यूब पर डालता रहता हूँ। तो वो जब मैं देखता था तो मुझे खुशी होती थी, इवन इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी। जब ये जंग नहीं हुई थी तो मैं बेसिस पर विजिट करता था, पायलट से मिलता था, तो मुझे बड़ा प्राइड होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चंद महीनों में यही पायलट, यही इंजीनियर, यही एयर डिफेंस कंट्रोलर, यही टेक्नीशियंस, यही सिविलियन एंड द लीडरशिप पाक फ़िज़ाइया की और इस मुसल्लहबाज की ये इम्तिहान में डाली जाएगी हमारे दुश्मन की तरफ से। ना सिर्फ सुरखरू होकर निकले, बल्कि एक नया मकाम हमने दुनिया में अपना पाया। अच्छा सर, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी, फ़ज़ाई बरतरी और एयर डिफेंस सिस्टम्स के मैदान में पाकिस्तान की बढ़ती हुई खुद इन्हिसारी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कैसे तब्दील कर रही है? से ही किसी वक्त भी हम नंबर पर, पैसों पर, तादाद पर तो इन्हिसार ही नहीं करते। डे वन से जब मैं एज ए यंग फाइटर पायलट या इवन कैडेट भर्ती हुआ था तो मुझे पता था और मुझे बता दिया गया था अपनी ट्रेनिंग के दौरान, हमारी इतनी हार्डन ट्रेनिंग थी, इतनी सख्त ट्रेनिंग थी, और जब हम पूछते थे कि हम इतनी सख्त क्यों करते तो उन्होंने कहा था हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है हमसे, तो हमने न्यूमेरिकली उनको नंबर बीट नहीं कर सकते, पैसों से हार्डवेयर ख़रीद के ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बे से, दूसरा बेहतर ट्रेनिंग से, और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उनको बीट आउट करना है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आपने देखा कि मई 2025 में हमने सिर्फ 6 और 7 की दरमियानी रात नहीं, 10 तारीख को भी जितनी टनेज ड्रॉप की थी, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यूज़ किए थे, लॉइटरिंग मिशन यूज़ किया था, किलर ड्रोन यूज़ किए थे, वो तमाम के तमाम वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया का, जैसे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू पिछले 4-5 साल से जिस तरह उन्होंने एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म किया है, लिथैलिटी बढ़ाई है, इकोनॉमिकल चैलेंजेस के बावजूद, जिसमें कोरोना भी शामिल था, उसके बावजूद जो आज पाक फ़िज़ाइया है ओवर द ईयर्स मेरा ख्याल है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इस रीजन में भी है। और इसका क्रेडिट सिर्फ प्रेजेंट लीडरशिप को नहीं जाता। एयर मार्शल असगर खान, जो मैं कहता हूँ एयरफोर्स फादर ऑफ द एयरफोर्स थे, एयर मार्शल नूर खान जो हमारे मेंटोर्स और रोल मॉडल हैं पाक फ़िज़ाइया के लिए, एयर मार्शल नूर खान, उसके आने वाले तमाम सरबराह, तमाम ने अपनी अपनी विजन, अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अपनी एफर्ट के ज़रिए पाक फ़िज़ाइया को सेकंड टू नन बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। और आखिर में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये इस सवाल के जवाब में कि अप्रैल 1948 को कायदे आज़म एक ही मिलिट्री एकेडमी अपनी ज़िंदगी में विज़िट कर सके और रिसालपुर तशरीफ़ ले गए। यही पाक फ़िज़ाइया है जिसके बारे में उन्होंने हुक्म दिया था इन अ वे अपनी स्पीच के अंदर, जो पाक फ़िज़ाइया उसको हुक्म समझती है। उन्होंने कहा था कि कोई भी मुल्क कमज़ोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन के निशाने पर होता है। पाक फ़िज़ाइया को, पाकिस्तान को चाहिए जितना जल्द हो सके अपनी एयरफोर्स मजबूत करे, जो दुनिया में किसी भी और एयरफोर्स से दूसरे नंबर पर ना हो। तो हम तो इसको हुक्म मानते हैं और आज भी हम पाक फ़िज़ाइया के नाम के नीचे लिखा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन। यही कायदे का फरमादात है हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द ईयर्स हर एक लीडर ने कंट्रीब्यूट किया है इन द लाइट ऑफ कायदे आज़म के इरशाद। बिल्कुल, सब ने कंट्रीब्यूट किया इसमें। और खालिद साहब, जदीद दौर में हम देखें तो जहाँ पर जंगे मैदान से ज़्यादा डिजिटल महाज पर लड़ी जा रही हैं, बयानिए की भी हैं, आपको लगता है हम अपने कौमी बयानिए के तहफ़्फ़ुज़ ठीक अंदाज में कर पा रहे हैं? हमारे खिलाफ चैलेंजेस तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी का हमें सामना करना पड़ रहा है वो ये है, पिछले साल हम बहुत रेलेवेंट हुए दुनिया की नज़र में। और मैं जब मीडिया पे पिछले साल भी आया और बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किए कि ये अब आप कैसा देखते हैं, हिंदुस्तान के पास क्या ऑप्शन है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, तो मैंने कहा था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सामने से मुकाबला नहीं कर सके, वो पीछे छुप के वार करेंगे वो, और वो प्रॉक्सी वॉर है। और वही मैं आप देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक प्रॉक्सी वॉर। अब दुनिया के पास हथियार उनके पास रह कोई नहीं गया हिंदुस्तान के पास, कि दुनिया जान चुकी है कि किसने फ्रंट पे आके मुकाबला किया, किसने शिकस्त दी, क्या नुकसान किसने उठाया, वो सब पता है।
नो लेस देन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कहते हैं। लेकिन उनके अलावा भी दुनिया में अब हम क्योंकि पहचान हुई है, तो हमें अंडरमाइन और कमज़ोर करने का यही एक तरीका है जो हमारा दुश्मन चलना चाहता है, कि हमें इंटरनली हमारी जो कोहेजन है, हमारा जो राब्ता है, हमारा जो आपस में एतमाद है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अगर पोलराइजेशन है तो दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। वो तो चाहेगा कि हम किसी तरीके से सुन्नी, शिया, सुबाइयत, सियासी पार्टियां इनमें बटे रहें, ये दुश्मन को फ़ायदा होता है। और वही वो बलूचिस्तान में एक डेवलपमेंट कर रहे हैं कि साथ से मरूमी का एहसास दिलाते हैं, उनका मीडिया कैंपेन चलाता है, फंडिंग करता है अपने सोर्सेज को KPK और तो वही ये एक चैलेंजेस ऐसे हैं। लेकिन ये कौम की रेजिलियंस बहुत है, ये पहले भी 80,000 से ज़्यादा शहादतों की कुर्बानी दे चुकी है, लेकिन अब हम नहीं उठाएंगे इस तरह की नुकसानात। इंशाल्लाह ताला कम बैक किया है मुसल्लह अफवाज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, मुख्तलिफ दोनों सूबों की जो है। तो आई थिंक मिलकर हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल, ताला। हम इंशाल्लाह हम मिलकर बहरान से निकल आएंगे। अच्छा सर, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और खून रेस जंग ने हमारी अस्करी हिकमत अमली और इंटेलिजेंस नेटवर्क को दीगर आलमी अफवाद से किस तरह से अलग और मुमताज़ बनाया है? जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास सर्वाइवल के अलावा हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हमने एवर रेडी रहना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पिछले साल दुश्मन को शिकस्त दी थी तो अब हम रिलैक्स कर जाएंगे, या अब हमने अबूर हासिल कर लिया है, या हम फतह से कामयाब होकर किसी सुस्त रवि में पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि पाक फ़िज़ाइया की तरफ से कंफर्म कर सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो हम उस पर नहीं स्लीप ओवर कर रहे कि हमने पिछले साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। एवरी डे बेसिस पे न्यू डेवलपमेंट का सोचा जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लीडरशिप उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करती है, और हम एक एलिमेंट ऑफ लिथैलिटी पैदा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमने किसी दुश्मन पर कब्जा करना है जाके किसी मुल्क पर, इसलिए कि हम खौफ ज़दा रखना चाहते हैं, हम डिटर करना चाहते हैं। और वही बेस्ट तरीका होता है कि आप तैयारी रखें। कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि पले हुए घोड़े तैयार करो ताकि तुम्हारे दुश्मनों पर धाक बैठे। उस जमाने में घोड़े थे, आजकल यही जहाज हैं, टैंक्स हैं, सबमरीन्स हैं, जो हमारी मुसल्लह अफवाज जिनको कौम बैक कर रही है, वो हम तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में चैलेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन आप उसके कॉम्बैट रेडीनेस से, नियर वॉर लाइक ट्रेनिंग से, और सबसे बढ़कर जज्बा ईमान से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। खालिद साहब, बदलती हुई आलमी जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान को आइंदा दहाइयों में किन तरजीहात पर काम करना चाहिए आपके नज़दीक? मौशी और दिफाई खुद इन्हिसारी बढ़ाने के लिए कौन से सख्त और जुर्रतमंदाना फैसले करने की ज़रूरत? देखिए, पिछले साल हमने अपना दिफा किया था जोग्राफियाई सरहदों का, उसको कहते हैं कि जोग्राफिक सॉवरेनिटी। अभी हमें बहुत बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के ऊपर। हमारी इकोनॉमिकली हम उतने सॉवरेन नहीं हैं। एक तरफ आप दुश्मन का आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन उसी साथ फिर हम IMF के बेल आउट का इंतजार करते हैं। उसी सांस में हम अपने दोस्तों से रोल ओवर की दरख्वास्त करते हैं कि कर्जे हमसे अभी ना मांगो, अगले साल ले लेना। तो ये आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कौमें जिनका तारीख में पढ़ा जाता है इकोनॉमिकली स्ट्रांग थी तो मिलिटरीली स्ट्रांग थी। ये नहीं हो सकता कि कोई कौम इक्तसादी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर हो और चैलेंजेस का सामना करे और वो मिलिट्री तौर पर स्ट्रांग हो। ये कॉम्बिनेशन होती है। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपकी कौम विलिंगली आपको फंड भी करती है, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ाती है, आपके लिए कुर्बानियाँ भी देती है। तो आई थिंक सबसे बड़ा आने वाले चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो ताकि हमारी वो सॉवरेनिटी भी एक बहाल हो, और दूसरा सबसे बढ़कर कि हम इस मिलिट्री स्टैंडर्ड को, इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को, इस डिफेंस प्रोडक्शन को कायम भी रख सकें। और वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि हम इकोनॉमिकली सॉवरेन करें। और फिर दूसरा, इंसाफ दें अपने लोगों को जिनके बच्चे तालीम के लिए नहीं जा सकते, जिनको मैंने कहा 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वो क्यों बाहर हैं? हमें सीखना पड़ेगा क्या तरीके दुनिया ने अपनाए। पॉवर्टी एलिवेशन कैसे की थी, चाइना ने की है, बहुत सारे मुल्कों ने की है। तो कोई मैजिक तो नहीं होता किसी के पास, सिर्फ कमिटमेंट चाहिए होती है कि आपके हमारे ऑलमोस्ट 30-40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ में है, यानी अंडर नरिश्ड है। हमने वो सीखना पड़ेगा कि क्यों हमने जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था 14 अगस्त का, कायदे आज़म को आखिरी वक्त डॉक्टर कर्नल लाई बख्श ने पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है, कोई अफसोस है दुनिया से जाने का, क्योंकि वो आखिरी वक्त था उनका। तो कायदे आज़म ने कहा था, मुझे एक अफसोस है कि जिन गरीब लोगों के लिए मैंने ये मुल्क हासिल किया था, अल्लाह ताला ने मुझे उनके लिए कुछ ज़्यादा करने की मोहलत नहीं दी। तो हम सबको मिलकर कायदे आज़म की ख्वाहिश को और उनके ख्वाब को पूरा करना चाहिए।
बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर जो ख्वाब कायद आज़म ने पाकिस्तान के लिए देखा था कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वैसा पाकिस्तान हम बनाएं। बिल्कुल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, जैसा कि सर ने बात की कि मौशी मुश्किलात पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो दीगर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान ने उससे निमटना है, लेकिन साथ ही साथ अगर 2025 या 26 की बात करें तो पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में बहुत ही मस्बत तरीके से उभरा है और हर कोई पाकिस्तान का मोतरफ है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है।